Hi students, welcome back. So let us continue today with a new topic, and that would be carbon and its compounds. But when I'm talking about the word carbon and its compounds, so what actually do you mean and by carbon, and what do you mean by compounds? And also why is this chapter included in class 10? मतलब कार्बन के बारे में ऐसा क्या खास है सर, और भी तो 118 एलिमेंट्स हैं. So why are you not discussing about all those? Why only about carbon? And if you're discussing about carbon, why is compound so important? So let's understand first of all. So a lot of questions are going to be asked in this topic coming from you. Why I am saying this, because you will just come to know in around next 5 minutes that why is this topic so important. Carbon technically constitutes the entire part of your life, right? I mean your body, the things which you see around you, literally everything is made up of carbon. Now let's take some of the living examples first, and then talk about the non-living examples. So living examples, of course you guys, everything what you can see is composed of carbon. Sir, हम में carbon कहाँ है? Guys, when you are talking about eating something, of course guys, that's carbon, right? Glucose, C6H12O6, so that's carbon. Now you can understand the wood which you are going to obtain from the plants, carbon. The food material which you are going to obtain from plants is carbon. The entire of your body is technically, guys, nothing else but is carbon. When you're talking about coal, that is carbon, that is a non-living thing. Then comes, guys, the diamond, that is also carbon. Plastics आप जो देख रहे हो, जो man-made material होता है, synthetic, that is purely carbon. So technically anything at all which you can see except metals or the elements, उन सबको छोड़ के rest आप जो देख रहे हो guys, सारी की सारी चीजें कार्बन ही है, more or less in a way. Now carbon, that's the reason why that chemistry के अंदर, which is a branch of science, जो आगे जाकर के in CBSE is going to be distinguished in between 3 branches, and in ICSE can, of course guys, वो already divided है, so chemistry, biology and physics. So chemistry is a branch of science which deals with chemical reactions and arrangement of electrons, and how things react and form a new product. Please understand that only one element, which is carbon, is so important that entire chemistry has been divided into actually 2 main branches. One is known as organic chemistry and another is known as inorganic chemistry. So when I am talking about the word carbon, then of course पहली चीज जो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, and that was what? That is organic chemistry. That means only because of one element out of those so-called discovered 118 elements or even the man-made, only one element would be able to constitute the entire organic chemistry. So if you're talking about why is carbon so important, I think that should be a pretty good enough reason for you to study carbon. So that means that organic chemistry is what kind of chemistry? The chemistry of carbon is known as organic chemistry, or the chemistry which deals with carbon and its compounds will be known as organic chemistry. तो जब भी कभी आप दुनिया के अंदर कोई एक बात सुनोगे, ये ऑर्गेनिक है, मतलब समझ जाना वो किस चीज की बात कर रहे हैं. They are talking about something natural, they are talking about something related to carbon itself, that is carbon. All over the world, अभी नहीं बट बाद में जाकर के कुछ टॉपिक्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन फुटप्रिंट. Now what do you mean by carbon footprint? Carbon, whenever leaves or burns, actually leaves a residue, or burns with a gas which is known as carbon dioxide, carbon monoxide, something. So they are known as the carbon footprint. So if somebody is saying कि इस कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के हार्मफुल गैसेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं. सो दैट इज कार्बन. नाउ गाइस, कार्बन बहुत अलग अलग फॉर्म्स के अंदर भी आता है. सो कार्बन्स के पहले जो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन फॉर्म्स? आई विल जस्ट टेल यू. Crystalline form, and the another form in which carbon is over there is the amorphous. What do you mean by crystalline form? Crystalline form means whenever any particular material is in a fixed shape or a self-repeating shape.
बार 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 वही शेप रिपीट होता जाएगा, देन इट इज नोन एज क्रिस्टलाइन फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल डायमंड. ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर कैसा भी उल्टा पुल्टा आपको लगेगा, बट गाइस वो सेल्फ रिपीटिंग होगा बार बार. ओके, सो डायमंड एंड देन कम्स द वर्ड ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का याद है आपको, द हेक्सागोनल अरे, यदि आपने पढ़ा होगा समथिंग लाइक दिस, इन विच वन लेयर इज गोइंग टू गेट अटैच टू अनदर लेयर, और एक के ऊपर एक स्लाइड करती रहती है, सो दैट इज ग्रेफाइट. देन कम्स द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. एमॉर्फस मीन्स amorphous. morph means shape, so amorphous means जिसका कोई शेप ही नहीं होता, जिसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता. एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, कहीं और है, और वो रिपीट भी नहीं करने वाला. देन एमॉर्फस फॉर्म कौन कौन सा हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल द चारकोल, लैम्प ब्लैक. लैम्प ब्लैक मतलब वो जो काजल जो दिया सलाई या दिए के ऊपर में रहता है या अर्दन लैम्प के ऊपर में रहता है, सो दैट इज चारकोल एंड लैम्प ब्लैक. नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स रिलेटेड टू कार्बन, तो आज बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखी होंगी. एंड रिमेंबर, जब ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू एंड अप द लेक्चर. सो देन कम्स द वर्ड एलोट्रॉप और एलोट्रोपी. Now what do you mean by the word allotropy? Now allotropy or allotropy is that particular phenomena in which a chemical element is going to exist in two different physical forms, but the chemical properties are always going to be the same. So physically different, but chemical properties are same. So what will be the definition of allotropy? The phenomena in which a chemical element exists in two or more than two different physical forms, but their chemical properties or chemically are same. What do you mean by this? यहाँ से भी एक्चुअली बहुत सारे आपके माइथ ब्रेक होंगे. सो whenever you are going to burn a diamond, it's again guys going to liberate carbon dioxide. And whenever you are going to burn coal, that's also going to liberate carbon dioxide. Whenever you are going to burn graphite, it's also going to liberate carbon dioxide. So everything is going to burn and give you carbon dioxide. जिसमें भी कार्बन होगा, आप जब भी कभी उसको बर्न करोगे या ऑक्सीडाइज करोगे, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट गैस लिबरेट करेगा. ध्यान रखना. तो ये आपके पास मिल गया आपको चीट कोड नंबर 1. सपोज करो किसी ने आपको बोल दिया एनी काइंड ऑफ कार्बन प्लस O2 विल गिव यू व्हाट? CO2. दैट्स सो सिंपल गाइस. करेक्ट. सो जब भी कभी कार्बन को अब आप सर लेकिन आपने ऑक्सीजन क्यों लिखा? ही तो ऑक्सीजन है. Guys, for burning or for combustion, this gas is the most important gas. It is required, and that's the reason why. So C plus O2 will give you CO2. Now, तो ये हो गया. अब आते हैं एलोट्रॉप्स पे. So एलोट्रॉप्स कौन होंगे? कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, और इन सिंपल वर्ड्स 3 बच्चे हैं. ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहा हूँ. कौन कौन से? द फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट, एंड द मैन मेड मटेरियल इज बकीबॉल. और इसी को ही आप लोग बकमिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हो. बक मिनिस्टर फुलरीन. Guys, check out for the spelling of this Buckminster. I might be wrong. Okay, but the word is of course fullerene. Now guys, very important question. Buckminster fullerene किस shape का होगा? Buckminster fullerene also is crystalline form. It's a cage structure. और इस केज का मतलब क्या हुआ? जैसे जो फुटबॉल होते हैं, यदि आपने कभी फुटबॉल देखी है तो उसमें से ऑल्टरनेट पैचेस होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक के. यदि मैं किसी भी एक एरिया को कंप्लीटली हटा दो तो जो बचेगा दैट विल बी नोन एज बकीबॉल. सो दिस इज द केज स्ट्रक्चर. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C60. So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये फॉर द पार्ट ऑफ MCQs. So what is the formula of buckyball? It's going to be C60, carbon 60, 60.
Also, what do you mean by cage structure? That means it will be in the form of soccer ball or football, and it will be in the form of cage structure. It's a crystalline material. It's also an allotrope of carbon, but it is synthetically made. Okay, so आपने synthetically इसको by the way आपने प्रोसेस करा हुआ है इन द लेबोरेटरी. सो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म मालूम पड़ गया, एमॉर्फस फॉर्म मालूम पड़ गया. क्रिस्टलाइन मीन्स समथिंग विच इज गॉट अ repeating unit, and amorphous of course which does not have a shape, which is non-repeating in nature. Allotropy I have already told you, and allotropes भी मैंने आपको बता दिए. So कार्बन के crystalline form में 3 allotropes होते हैं. One is known as diamond, another is known as graphite, and another is known as Buckminster fullerene. Whenever somebody talks about the word diamond, then remember it's the hardest thing known to man, hardest rock. If you are going to break, a stone, I mean, यदि आपने एक suppose करो, if you have taken a stone of the same size and a diamond of the same size, and if you are trying to break that stone, or sorry, if you are trying to break the diamond with the stone टूट जाएगा, diamond नहीं टूटेगा. Of course, same size का लेना, इसका मतलब ये नहीं है diamond इतना सा लो और एक बड़ा सा बुलडोजर लेके आ जाओ. Common sense guys, diamond will be crushed. But understand the diamond is the hardest rock known to mankind till now, and the strongest metal is titanium. Diamond in fact is much more stronger as compared to titanium. Anyway, now let's talk about in terms of a diamond. Now diamond guys, remember ये कुछ जनरल नॉलेज वाले पॉइंट्स हैं. डायमंड को मेजर करने के लिए हमेशा 3 C's आते हैं. इसको 3C बोलते हैं. So one is known as cut, second is known as clarity, and then comes the carat. Now please understand guys that diamond जब raw piece में निकलता है तो of course guys उसकी कोई value नहीं होती, but of course it is the hardest rock still. उसके बाद में उसको लेजर कटिंग या पॉलिशिंग के लिए लेकर के जाते हैं. इंडिया के अंदर अलग अलग सेंटर्स हैं. फॉर एग्जांपल जयपुर इज वेरी फेमस, along with that in Gujarat also there is this very famous place. So वहाँ पर इन डायमंड्स को लेकर के जाते हैं, जो कच्चे डायमंड्स होते हैं, द रॉ डायमंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं, और अनपॉलिश्ड डायमंड्स. वहाँ पर जाके इनको कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है. दैट्स अ वेरी स्किल्ड जॉब गाइस, बहुत स्किल्ड जॉब होता है. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि क्रिस्टलाइन है, आपने इसको ज़्यादा जोर से कुछ कट कर दिया एंड द पर्टिकुलर पार्ट एक फेज ज़्यादा कट जाएगा तो ऑफ कोर्स गाइस उसकी रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, या वो उतने आराम से इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करता. और आपने ऑलरेडी पढ़ा था गाइस इन ऑप्टिक्स में दैट डायमंड का जो ऑप्टिकल बाय द वे जो इंडेक्स होता है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है दैट इट विल नॉट अलाउ द लाइट. यदि आपने एक प्रॉपर फेस पे रखा तो इट विल नॉट अलाउ लाइट टू अगेन गो आउटसाइड, वो अंदर ही अंदर ट्रैवल करती रहती है, विच इज द केस ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो आप एक एंगल में कट करते हो. मीनिंग व्हाट, दैट कट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस ढंग से कट्स हैं उसके. ट्रू डायमंड का ब्रिलियंस गाइस वर्ल्ड फेमस है. एंड टेक्निकली जो लोग इंडिया पे ऑलवेज चार्ज करते रहते हैं कि इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री एंड यहाँ के लोग इलिटरेट हैं और ये हैं एंड वो है, I think they all need to revisit history guys once again, or they need to get their brain checked up twice or thrice might be in a year. Why? Because the largest diamond or the most expensive diamond in the world, which you already know, that is Kohinoor, of course is from India guys. So we were never poor, we are not poor, and we can never ever be poor. Remember this. Now, so cut is very important कि डायमंड के अंदर कितने अच्छे ढंग से कट्स करे हुए हैं. So since it's a hand skill job, that's the reason why diamond becomes so expensive. Then comes clarity. डायमंड पे क्योंकि डायमंड क्रिस्टलाइन मटेरियल है, जब उसे कट करते हो तो वो और ज्यादा शाइनी हो जाता है, बिकॉज लाइट इधर से उधर टकरा करके पास आउट करेगी तो रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा. इन दैट केस एक छोटा माइन्यूट पॉइंट पे यदि आप लेंस से देखोगे तो आपको डायमंड के अंदर मैग्नीफाइड नजर आता है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई क्लैरिटी मींस अ लॉट. सो डायमंड अलग अलग कलर्स में आता है. देयर कैन बी अ टिंजिश येलो डायमंड, देयर कैन बी व्हाइट डायमंड, बट गाइस सो क्लैरिटी इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड देन कम्स द कैरेट. कैरेट इज नथिंग एल्स बट इज द यूनिट टू मेजर वेट. So carat is also very important. So जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, then becomes diamond the most expensive thing. It is very very expensive. So if you take a stone, a small stone of diamond,
it might cost you around 2 lakh, 4 lakh. थोड़ा सा और बड़ा आपने लिया, it might cost you 8 and 10 lakh. But why are we talking about diamond? I'm just talking about how this carbon is going to show you its different colors. ये तो हो गया एक कार्बन का ही बच्चा है डायमंड. अब आते हैं जरा दूसरे बच्चे पे, ग्रेफाइट. एग्जैक्टली उल्टा. नाउ डायमंड जितना हार्ड है, ग्रेफाइट उतना ही सॉफ्ट है. इनफैक्ट आप यदि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके आजू बाजू में कहीं ना कहीं पेंसिल पड़ी होगी. यदि आप उसका लेड देखोगे पेंसिल का, सो दैट इज नथिंग एल्स बट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ग्रेफाइट. ऐसे लोगे ऐसे टूट जाता है. दैट इज दैट स्मूथ. ना उसके अंदर भी एक खास बात होती है कि वो इतना स्मूथ होता है, इतना स्मूथ होता है दैट यू कैन एक्चुअली मेक अ इंप्रेशन ऑन द पेपर. डायमंड से करोगे तो रजिस्टर जाएगा पूरा, आपका पूरा कट हो जाएगा. बट यदि आपने ग्रेफाइट से किया तो टीचर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स. उस पर इंप्रेशन आ जाता है. इट इज दैट सॉफ्ट, इट इज स्लिपरी इन नेचर. ग्रेफाइट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है दैट ग्रेफाइट इज यूज्ड एज यू नो इन अ लुब्रिकेंट. तो ग्रेफाइट इतना स्लिपरी होता है, लुब्रिकेंट के अंदर जाता है और इंजन के बीच में फ्रिक्शन को कम करेगा. ओके, सो दैट इज ग्रेफाइट. सो एग्जैक्टली टू ऑपोजिट फॉर्म्स, राइट? And Buckminster fullerene, I have already told you, cage structure, artificially made, man-made in laboratory, C60, cage structure, buckyball, Buckminster fullerene. Let's now talk about furthermore carbon. तो ये तो हो गए कार्बन. एज ए चारकोल एंड लैम्प ब्लैक आर ऑल एमॉर्फस फॉर्म्स. पाउडर्ड फॉर्म में आएंगे, इनका कोई शेप नहीं होता. सो दैट इज दिस. जब भी कभी आप बात करोगे कार्बन की, सो रिमेंबर हर एलिमेंट की तरह, बिकॉज इट्स एन एलिमेंट, इसका भी एक सिंबल होता है. तो कार्बन का सिंबल क्या होगा? C. What is the atomic number of carbon? So it is 6. What is the atomic mass of carbon? It is approximately 12, 12.00 something. So approximately 12, मतलब आप हमेशा 12 ही लेते हो. Now कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक configuration, it is going to be what? It is going to be 2,4. outermost valence shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. number of shells कितने होते हैं? 2. कौन कौन से? which is K and L. okay, so L वाले में कितने होंगे? 4. okay, number of shells is 2, valence is 4. Now what is the position of carbon in the periodic table? So of course position would be position and nature. ये metal है कि non metal है? Of course guys, it is non metal. right? Also the position कौन सी हो जाएगी? कार्बन is 2,4. so in which particular period if you think? that is the period would be second. sorry the अरे पीरियड को मैंने क्यों रब कर दिया? पीरियड एंड ग्रुप. so period is second. okay, and what is the group? so group will be 14th group. so this is all about carbon guys. okay, so carbon technically is very very important. now guys tell me whether the group number is 14 or 4. I don't know, you must have heard about the classification of elements. so आपको बताना पड़ेगा कि इसका ग्रुप नंबर 14 है कि 4 है, because I think it should be 14. But if you think it is 4, guys, please do comment so that in the next lecture I can rectify this. I don't give me this look, guys. You know I don't know all this. So I don't know whether the group number is 14 because I think it's 14, but normally it can be 4 also, right? Because यहाँ 4 है तो ये 4 भी हो सकता है. नहीं? Forget it. Care. So this is all about carbon. Of course, with this particular thing is dicey. So what you need to tell me is whether I have written the group number right or wrong, because I really doubt my own intelligence always. So
सो दिस इज ऑल अबाउट द सो कॉल्ड बायोडाटा ऑफ कार्बन. जब भी ये कभी कहीं पर जाएगा अपना रिज्यूमे लेकर के, तो ये सारे के सारे उसके स्टार्ट्स होंगे. नाउ वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग अबाउट कार्बन इज दैट कार्बन एक बहुत ही यूनिक पोजीशन होल्ड करता है. कैसे? कार्बन के आउटर मोस्ट में देखो 2,4. नाउ लेट्स राइट अ सीरीज एंड देन मेक यू अंडरस्टैंड. You already know what is this. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So when I'm talking about lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, let's write the atomic number. So this one is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Guys, the electronic configuration is going to be 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, sorry, 2,6, 2,7 and 2,8. Now can you see this? 2,1 इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आउटसाइड है, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ लूजर. ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड विल बिकम अ मेटल. 2 लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स मच मोर इजियर टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रादर देन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स. 2,3 3 इलेक्ट्रॉन्स का इज लूज करेगा, ज्यादा ही सिंपल है एज कंपेयर टू 5 गेन करेगा. कार्बन पे बाद में आते हैं. 2,5 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको केवल 3 चाहिए, तो ये 3 गेन करेगा, इट विल बी अ नॉन मेटल. ऑक्सीजन केवल 2 चाहिए, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, गेन करेगा. फ्लोरीन द ग्रेट मराठा, आपको लगता है ये छोड़ेगा ही नहीं, कोई इसके पास में आएगा भी मांगने के लिए कि अच्छा आप मेरे को एक इलेक्ट्रॉन, ये पहले उसको 2-3 पहले पंच करेगा, उससे उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर उससे पूछेगा अच्छा आप कुछ बोल रहे थे, यू वर सेइंग समथिंग. दैट इज फ्लोरीन द ग्रेट मराठा. देन कम्स द नियॉन. सो व्हाट इज नियॉन? 2,8 outermost 8. नाउ थिंक अबाउट इट. कार्बन 2,4, ये बेचारा सोचेगा मैं दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस विल नेवर एवर लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल नेवर एवर गेन एन इलेक्ट्रॉन. सो कार्बन ना कभी लूज करेगा ना कभी गेन करेगा. जब कार्बन लूज भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन विल बी फॉर्मिंग ऑलवेज और अंडरगोइंग शेयरिंग. ये हमेशा शेयर करेगा इन बिटवीन. वेन एवर एनी पर्टिकुलर बॉन्ड, आपको ऑलरेडी मालूम है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था आपने, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग गेन्ड और लॉस्ट. कार्बन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये शेयर करेगा. इसका मतलब सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स विच आर एक्चुअली फॉर्म्ड because of sharing of electrons are known as what? They are known as covalent bonds. Now let's understand before covalent bond what do you mean by ionic bonds. So let's write the word ionic bonds. Now let's understand ionic bonds में क्या होता है. Suppose कर लो there is the sodium with an electronic configuration of 2,8,1, and there is this chlorine with an electronic configuration 17, which is 2,8,7. Common sense guys, this one electron is going to get lost somewhere over here and this chlorine is going to accept an electron. Let's make it a bit more nicer. Sodium has got in outermost 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम को ऑक्टेट के हिसाब से कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने हैं या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है. अब खुद सोचो, यदि आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? कॉमन सेंस, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे. सो सोडियम भी आपके जितना इंटेलिजेंट है, इट इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन and it is going to become Na positive because एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला, तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिव. अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, वो कहीं कोई ना कोई तो लेगा ना, हवा में ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा. सो वहां पर क्लोरीन, बिकॉज यू नो दैट क्लोरीन इज फ्रॉम द हेलोजन ग्रुप 17 ग्रुप, और ये डेस्परेटली रिक्वायर्ड होता है इनको इलेक्ट्रॉन. सो क्लोरीन के पास में कितने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं. इट वुड रिक्वायर दिस इलेक्ट्रॉन
सो क्लोरीन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा, तो ये हो गए उसके 8, क्लोरीन बन गया और इसके पास में हो जाएगा नेट नेगेटिव चार्ज। सो दैट मीन्स दैट क्लोरीन is going to become what? क्लोरीन नेगेटिव। Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब दोनों के दोनों बन चुके हैं कंप्लीट ऑक्टेट, वेरी हैप्पी एंड स्टेबल। सो बोथ विल मीट टुगेदर, Na positive and Cl negative, and they are going to form what? NaCl. Got it? So Na is going to lose an electron and Cl is going to gain an electron to form what? NaCl. बन गया आपका कंपाउंड NaCl. So guys, this is very very important. Why? Because you need to know ionic bonds. इसको बोलते हैं such kind of bonds in which there is a permanent transfer of electrons. So when I am emphasizing on this word permanent, please understand, whenever sodium is going to lose an electron and chlorine is going to gain an electron, and when I am saying sodium and chlorine, that does not mean only sodium and only chlorine. It can be magnesium and chlorine, it can be any two elements. बस उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करना चाहिए या दो इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करना चाहिए और दूसरे वाले को उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो when such kind of bonding takes place, when there is a permanent transfer of electrons from one element to another, then such kind of bonds are known as ionic bonds. But carbon is not exactly in this condition. Can you see? कार्बन तो बीच में है, ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो करेगा क्या? So let us say suppose carbon is somewhere over here and it has got 4 electrons. So this is 1 electron, 2 electrons, 3 electrons and 4 electrons. So these 4 electrons are right now over here. Now the point is, if all these 4 electrons are over here, कार्बन को समझ में नहीं आ रहा है मैं लूज करूं कि गेन, तो अभी क्या करेगा, ये लोगों से मांगना चालू कर देगा, कोई है जो मेरे से प्लीज बॉन्ड बना लो। अब एक हाइड्रोजन, मान लो उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन बोलेगा ओके, आई विल फॉर्म अ बॉन्ड। सो देयर इज दिस वन मोर हाइड्रोजन, आई विल से अ बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास में एक और है, आई विल फॉर्म अ बॉन्ड। बन गया योर सो कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 व्हिच इज नोन एज मीथेन। सो कार्बन जब भी कभी फॉर्म करेगा तो कैन यू सी, अब इससे फायदा क्या हुआ? इफ यू कैन सी, हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? शेयरिंग इज केयरिंग। नो गाइस, शेयरिंग मींस दैट जब भी कभी हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगी तो ये उसका डुएट कंप्लीट हो गया। याद है 2, 8, 18, 32, सो ये उसका भर चुका है। यहां पर कार्बन के लिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट हो चुका है। इन दिस वे, दिस अरेंजमेंट और दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन विच देयर इज नो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but only sharing of electrons takes place from one species to another, then such kind of bonding will be known as covalent bonding. अब guys एक बात दिमाग में कॉमन सेंस सोचो, which bond do you think is more stable? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा, स्टेबल बॉन्ड कौन सा बनेगा? इज इट आयोनिक और कोवेलेंट? गाइस कॉमन सेंस, इट्स आयोनिक। व्हाई इट्स कॉमन सेंस? इन आयोनिक बॉन्ड देयर इज नो कंफ्यूजन, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तू ले ले, मैं भूल गया, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने ये वेस्ट ले लिया, उसका भी काम हो गया। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वैसे भी लूज करना था और उसको चाहिए था, उसने ले लिया। बोथ आर हैप्पी इन आवर ओन वे। परमानेंट ट्रांसफर, नो कंफ्यूजन। यहां पर हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है, ये इलेक्ट्रॉन है किसका? हाइड्रोजन बोल रहा है मेरा है, कार्बन आर यू नट्स और व्हाट, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। So there is always this confusion. So that means that ionic bond will always be much more stronger bond as compared to covalent bonding. Got it? So this is known as ionic and covalent bond. Now एक और word पे आते हैं, the word catenation. Catenation, and I don't think now space is being left out. Okay, so what do you mean by the word catenation? Now carbon
आपने देखा है कि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है एंड ग्रुप नंबर सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज द ग्रुप नंबर 14 और 4 खैर सो जिसका भी है कार्बन वो आपको बताना है कैटनेशन इज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन विच कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी starts forming long chains. कैसे? Like this. कार्बन, अब कार्बन को कोई हाइड्रोजन मिला ही नहीं तो कार्बन ने एक और कार्बन को बुलाया, बोला प्लीज आप आ जाओ मेरे साथ. इस कार्बन के पास अभी 4 है. इन लोगों ने ऐसे लंबे लंबे चेन्स बनाना स्टार्ट कर दिए like this. So what do you mean by the word catenation? The ability of carbon to form long interlinked chains with one another will be known as catenation. But catenation होता क्यों है? Because कार्बन का साइज बहुत कम होता है. कार्बन सेकेंड पीरियड में है तो इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी की तरह, बहुत छोटे बच्चे की तरह है. और आपके घर में यदि आप रो रहे हो और आपका यदि कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन रो रही है तो गाइस क्या लगता है ध्यान कहाँ पर जाएगा? कॉमन सेंस है उसकी तरफ में जाएगा. आप पर वैसे भी कोई नहीं ध्यान देता है नो बट स्टिल अरे जस्ट मजाक करो. सो गाइस अंडरस्टैंड दैट सिंस कार्बन हैज गॉट वेरी स्मॉल साइज एंड आल्सो इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, राइट? सो इफ कार्बन इज सो इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट मींस उसके पास में कैटेनेशन या होल्ड करने की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होगी. नाउ नॉर्मल क्वेश्चन कम्स अप इन द एग्जाम. फिर इसका मतलब ऐसा कार्बन का जितने भी जो ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप में तो सबके एटॉमिक नंबर्स मतलब सबके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं, तो सर कार्बन के ग्रुप में सिलिकॉन भी आता है, तो सर क्या सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करेगा? इन अ वे यस बट इन अ वे नो. यस एंड नो. व्हाई? Guys, let's take an experiment and this will be the last experiment and then you all guys are good to do anything at all, whatever you want. Let us take two bricks, and I am holding one brick like this, I mean two of the bricks like this, one in this hand, one in this hand like this, ऐसे पकड़ा हुआ है, and I am going to another hold it like this. Now my question to you is which one is more painful and which one you can do it for a much longer period? Think about it. सर कॉमन सेंस है. ऐसे वाला सर काफी देर तक रखेंगे, ऐसे वाला तो सर 1 मिनट में ही जान निकल गई. अंडरस्टैंड व्हाई? द ओनली रीजन इज once you are going to spread the hands, the arms becomes much more farther away as compared to your center of gravity. इसका मतलब हो गया आपको इस पार्ट पे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा. सिलिकॉन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो चेन तो बनाता है बट इतनी लंबी हो जाती है चेन की बीच में ही टूट जाती है. And that's the reason why silicon also, forms catenation, but not form very long chains because it cannot keep those long chains together. It breaks. Carbon has got a small size, and that's the reason why carbon सब चीजों को अपने एकदम आजू बाजू में स्टोर करेगा, and that's the reason why कार्बन की catenation property होती है. That means it has got very long chains. यदि आपको लास्ट एग्जाम्पल दे दो लॉन्ग चेन्स का तो रिमेंबर दैट लॉन्ग चेन्स के अंदर दिस कुड बी द लास्ट एग्जाम्पल. और सिंपल. सर क्या लिखा है आपने? ओ मैंने फिर से कुछ गलत लिख दिया. नहीं सही लिखा है. ऑफ कोर्स गाइस इट्स योर ओन हेयर. योर ओन हेयर इज 100% प्योर प्रोटीन मॉलिक्यूल. And protein is nothing else but as carbon, again nitrogen, then again carbon, nitrogen, amino acids and so on and so forth. So guys, technically ये proteins बहुत बड़े molecules होते हैं, बहुत बड़े molecules होते हैं. If they are so larger molecules, C55, C60, C150, इसका मतलब 150, 140, 50, 60 कार्बन के एटम्स फॉर्म करके वो एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे. एंड दैट्स द रीजन वाई यदि आप कभी भी हेयर को कभी मुंह में आ जाता है या यदि कभी च्यू करोगे इट वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट इजीली. प्योर प्रोटीन. Did you get this? So remember this part guys. Altogether whatever is being taught today to you, so do remember this and once again we are going to meet again because आज तो बहुत सारे lectures हैं आपके. Thank you guys so much. Enjoy and bye. Take care. And guys, yes, remember your parents. Keep loving them always and spread positivity wherever we go. Thank you. Bye.